Okay, so let's start. So yesterday we were discussing this thing, this one we were discussing that how we will get the condition of incident angle of incidence become equal to the angle of refraction. Sorry, angle of emergence. So with that one, we had got one relation that the angle of incidence is, if the angle of incidence is equals to the angle of emergence, then we get for the minimum deviation. तो कल minimum deviation के बारे में हम लोगों ने discuss किया था. So minimum deviation is a condition when we observe that the angle of incidence is equals to the angle of emergence. जब angle of emergence और angle of incidence जो होती है वो जब equal हो जाती है तब उस सिचुएशन में एंगल जो डेविएशन होती है उसको हम लोग मिनिमम डेविएशन कहते हैं. और इसका एक रिलेशन भी हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था. उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होती है वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन जो होती है वो डिक्रीज होती है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज होती है वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो भी इंक्रीज होती चली जाती है. तो इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. तो उस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर कि ये बदलाव शुरू होता है या फिर ये चेंज स्टार्ट होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग या उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं मिनिमम डेविएशन का पॉइंट कहते हैं. ठीक है. खैर वो चीज तो हम लोग ने देख लिया था. फिलहाल अभी जो हम लोग को डिस्कस करना था जो कल हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पाए थे. द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन. एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है. तो एक शॉर्टकट मेथड पे यहाँ पे लिखा हुआ रह सकता है. ये हो सकता है ए एम ए डब्ल्यू. ओके. सो व्हाट इज ए एम ए डब्ल्यू? Amount. Is it amount or khabao? So whatever you want to know for that one, you can get it from here. So A stands for the angle of the prism. ठीक है. तो सबसे पहले जो फैक्टर वहां पर डिपेंड करेगी वो है एंगल ऑफ द प्रिज्म. एंगल ऑफ द प्रिज्म जो होती है वो ये होती है हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है. सो दिस एंगल ऑफ द प्रिज्म इज डिटरमाइनिंग द कंडीशन ऑफ द डेविएशन. तो अगर ये एंगल ऑफ प्रिज्म बदल जाती है और तुम लोगों को जब प्रिज्म का इंट्रोडक्शन बता रहे थे तब हम बताए थे कि different prism has different angles. This one was an equilateral prism, hence it is having a 60-degree. But it is not that all the kind of prism is having 60-degree. They can have different angles. The next is M. What does this M denotes? That is the material of the prism. Material of the prism जो है वो भी refractive index को determine करती है क्योंकि वो किस तरह के material से बनी हुई है. वो glass से बनी हुई है. Now glasses are also of different kinds. Simple glasses are made up of with a simple materials, but some glasses are mineral glasses. Some are mineral glasses which contain some specific mineral, and because of that we used to observe their strength and their optical density got changed. So ये हम लोगों की second factor बन जाती है. And the third factor is angle of incidence. अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हम लोगों को अलग अलग एंगल ऑफ इमर्जेंस देखने को मिल सकती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर इस सिचुएशन में अगर हम इस एंगल को लेते हैं से एज फॉर एग्जांपल 45 डिग्री, then I'm going to observe the angle of emergence something. Angle of emergence going to be something. And if I will change the angle of incidence to something such as, for example, if I put the angle of incidence like this, then it is little shorter than the previous one. This is little shorter over here. So over here, this angle can be say as 35 degree. Okay. Or if I go for another angle, which can be from this side, and say as for example, for this particular angle, the value would be little bit greater. The value is going to be little bit greater, and say as for example, the value of this one is 55 degree. So with respect to the change in the angle of incidence, we will observe that there is a change in the angle of emergence. So at the beginning, we will see that the angle of emergence is going to decrease. Say as for example, for the angle of incidence and this angle of emergence is here. Say as for example, for 30 degree, we had observed 42 degree. For 35 degree, we had observed 40 degree. Then for 40 degree, we had observed 35 degree.
For the 45 degree we had observed 30 degree, and then for 50 degree we had observed 35 degree. So if this happened, then at this particular point, the change is going to occur. At this particular point, the change is going to occur. So this particular condition will create the minimum deviation. It will create the minimum deviation. Okay, so that is the secondary thing. But as the angle of incidence changes, the angle of emergence changes. And as the angle of emergence changes, remember, the angle of deviation will also change. Say as for example, if the emergence ray, if the emergent ray is this, if the emergent ray is this, then under this situation, what would be the production at the back? It would be this one. It would be this one. And if it is this, then what would be the angle over here? This will be little bit greater than to the previous one. It is little bit greater than the previous one. So here the angle of emergence is less. It means the angle of deviation is more. So this is the condition which we used to observe. So please remember for this one. So angle of the prism is a factor which determines the deviation. The material of the prism also determines the deviation. Angle of incidence also determines the deviation, and the wavelength of the light used also determines the deviation. अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ कैसे डिटरमाइन करती है? हाउ डू द वेवलेंथ अफेक्ट्स द डेविएशन? वेवलेंथ किस तरह से डिटरमाइन करती है कि डेविएशन कितनी होगी या नहीं होगी? इस चीज के लिए हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ डायरेक्टली रिलेट करती है वेलोसिटी से। वेवलेंथ डायरेक्टली रिलेट करती है वेलोसिटी से। अगर वेवलेंथ में वेरिएशन है, इट मींस दैट देयर विल बी अ वेरिएशन इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में वेरिएशन होगी, और अगर वेलोसिटी में वेरिएशन होती है, देन द बेंडिंग नेचर विल आल्सो वेरिएट। तो बेंडिंग जो होगी वो भी अलग अलग होगी। ये हो सकती है ये यहाँ पे बेंड कर गई, या फिर ये हो सकती है यहाँ पे बेंड हो गई, या फिर ये हो सकती है यहाँ पे बेंड हो गई। तो जैसे जैसे अलग अलग पॉइंट पर बेंड होगी, तो इमर्जेंट रे भी अलग अलग होगा। और उस इमर्जेंट रे से जो बनने वाला एंगल ऑफ डेविएशन होगा, वो भी अलग अलग होगा। तो इन सब को हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, हर किसी को एक दूसरे के साथ रिलेट करने की कोशिश करो। जब तक तुम लोग एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करोगे, तब तक समझ में नहीं आएगी। तो just go for each and everything with each other, means you have to understand each and everything with respect to each other, so you have to be mindful for that one. So यहाँ पर ये वाली जो पॉइंट थी वो तुम लोगों को समझने की जरूरत थी. So once again, what are the factors which determines the angle of deviation? अच्छा, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है. This is a very important question, so you can go for VBI. Okay, this is a very important question. ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मली पूछा जाता है कि what are the factors on which the angle of deviation used to depend on. तो यहाँ पर ये आ जाएगा angle of prism, material, angle of incidence and wavelength. एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है. एक और क्वेश्चन इसमें से रिलेट करती है ये लास्ट वाले पॉइंट से. इस लास्ट वाले पॉइंट से ये यहाँ पर डिटरमाइन करती है. तो देखो हम यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर इसका यूज किए हुए हैं. अगर यहाँ पे देखोगे तो एक पॉइंट यहाँ पर यूज किए हैं. ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ डू द वेवलेंथ, क्वेश्चन है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है. 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, हाउ डू द वेवलेंथ डिटरमाइंस द एंगल ऑफ डेविएशन. How do the wavelength determines the angle of deviation? So you can say like this thing, when there is a higher wavelength, then the lesser the angle of deviation. तब वहां पर lesser the deviation होगी, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, अभी भी जो बता रहे थे तुम लोगों को, कि how do the wavelength is related to the velocity. So wavelength is equals to, we had done for this thing that it is velocity by frequency. And we know this thing that the wavelength is connected with the velocity, and velocity is directly related to the bending nature. So if wavelength is high, then the velocity is high. If velocity is high, then the bending will be more. If bending will be more, hence the angle will be lesser over there. तो वहां पर जो एंगल होगी वो कम बनेगी, ठीक है. तो इस चीज को तुम लोगों को समझने की जरूरत है. तो इसको प्लीज याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है,
ठीक है, इसीलिए हम बार बार इस टॉपिक को बार बार दोहरा रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच वी हैव टू सी मिनट। ओके, ना अब हम लोगों को देखनी है कुछ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से होने वाले कुछ सिंपल सिंपल एप्लीकेशंस। कुछ एप्लीकेशंस के बारे में तो इस क्लास में हम लोगों को पढ़ना भी है और बाकियों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो अगर हम लोग देखते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन देन व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, द फर्स्ट वन इज दैट the concept of refraction of light find its application in many fields which we used to see in our day-to-day life. The very first one which we have to understand, that is the uses of lens. जो lenses होती हैं, the concept of refraction is used over there to either refract through a convex lens or through a कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो चाहे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से देखें या कॉनकेव लेंस से देखें, वहां पर हम लोग देखते हैं कि वो रिफ्रैक्ट करती है, जिससे कि हम लोग अलग अलग तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, चाहे वो बायनोकुलर्स हो, टेलीस्कोप्स हो या मैग्नीफाइंग ग्लासेस हो। इस तरह के अलग अलग तरह की चीजों को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फिर अगर हम लोग देखते हैं कि जब स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं थ्रू अ प्रिज्म, जब हम लोग स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन देखते हैं तो वो भी काउज होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण। फिर क्लिनिकली भी इसका यूज किया जाता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो आई क्योरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे कि हम लोगों के आंखों को ठीक किया जाता है, उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को भी जो बनाई जाती है उसमें भी रिफ्रैक्शन का यूज होता है। जैसे कि एक बहुत कॉमन सा इंस्ट्रूमेंट है, दोज हु हैड गॉन टू एन ऑर्थोपेडिस्ट, मींस उस तरह के व्यक्ति जिससे जो कि डॉक्टर, जो कि आंखों के डॉक्टर होते हैं, अगर तुम लोगों ने उनके पास गए होगे तो तुम लोगों ने वहां पे एक्सपीरियंस किया होगा, देयर इज अ मशीन इन विच दे आस्क यूज टू पुट योर हेड inside over there, and then they used to flash a light on your eyes through that machine. A compact machine is there and they used to flash a light over there. तो वहां पर उस फ्लैश से क्या पता चलता है? उस फ्लैश से पता चलता है इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन, यानी तुम्हारे आंख में इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन कैसे होती है। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन होती है, इट मेक्स अस एबल टू सी एनीथिंग, बट इट इज नॉट लाइक दैट। रिफ्रैक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू मेक अस सी एनीथिंग इनसाइड आवर आई। हम लोगों के आंखों के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों के आंखों के अंदर रिफ्रैक्शन होती है। हम लोगों के आंखों के अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस है बीचों बीच में, तो लाइट रे यहाँ से रिफ्रैक्ट करती है, जो लाइट रे पुपिल से घुसती है, आइरिस से क्रॉस होकर यहाँ पे लेंस से रिफ्रैक्ट करती है और पीछे रेटिना में जाकर इमेज बनाती है, और फिर इस इमेज को हम लोगों का ब्रेन स्टडी करता है, तब हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो खैर, ये सब अलग अलग पॉइंट्स है जिनको कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक्स में, लेकिन जो अभी हम लोगों को जो मेनली डिस्कस करना है वो है रियल एंड अपरेंट डेप्थ। रियल एंड अपरेंट डेप्थ, तो ये रियल एंड अपरेंट डेप्थ होता क्या चीज है? ठीक है, सो इसको सिंपल तरीके से अगर डिफाइन करते हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि रियल डेप्थ इज द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट beneath the surface, as weather be measured by the submerging a perfect ruler along with it. And apparent depth is the medium, or is the depth which is in the object for a denser medium as seen from the rarer medium. तो ये है क्या बेसिकली? अगर हम लोग बोले तो ये है क्या, तो ये एक सिचुएशन है जो कि काउज होती है हम लोग जब किसी भी तरह के लिक्विड में या किसी भी तरह के डेंसर मीडियम में किसी चीज को देखते हैं। तो रियल डेप्थ क्या होती है? रियल डेप्थ वो डेप्थ होती है जिसको कि हम लोग गहराई में एक्चुअली मेजर कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने एक स्केल डाला, अगर हम लोग एक मेजरिंग स्केल डालते हैं तो उससे हम लोग इजीली उसको मेजर कर सकते हैं कि वो कितनी गहराई में है। लेकिन अगर हम लोग रियल डेप्थ, सॉरी अपरेंट डेप्थ को देखते हैं, so that is an appearing condition which appears from the rarer medium to denser medium. ये ध्यान देना, this is very very important. The apparent depth appears from the rarer medium to denser medium. जब हम लोग रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में देखते हैं तो एक appearing कंडीशन आती है, and that is called to be as the apparent depth. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? apparent depth कहते हैं। ठीक है, and the value of the apparent depth is always less than to the value of the real depth. जो real depth होती है उसके comparison जो होती है वो
अपरेंट डेप्थ हमेशा कम होती है, वो हम लोगों को वो हम लोगों को ऊपर की तरफ दिखाई देती है, या फिर वो हम लोगों को एक्चुअल डिस्टेंस पर नहीं दिखाई देती है। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डू दिस हैपेंस, or why we used to observe that the apparent depth is causing, or the depth has been changed over there. So actually this phenomenon occurs due to the property of light which is called to be as refraction of light. यहाँ पर refraction of light के कारण ही ऐसा देखने को मिलता है. So when an emerging a stick in a water, the ray of light passes from the rarer medium to denser medium and they move towards the normal. अब ये सिचुएशन है क्या, ये कंडीशन है क्या, इसको हम लोग आगे समझेंगे. और इसमें कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन भी है, और इसमें तुम लोगों को न्यूमेरिकली अंडरस्टैंड भी करना है कि कैसे ये होता है. तो अब हम लोग थोड़ा सा सिचुएशन देख लेते हैं कि रियल डेप्थ में क्या है, या फिर उसके क्या क्या कैलकुलेशंस हो सकते हैं. तो देखो, अगर मान लेते हैं ये एयर है ऊपर में और नीचे वाटर है, तो एयर जो है वो तो एक रेयरर मीडियम है, और वाटर जो है वो एक डेंसर मीडियम है. अगर कोई एक स्विमिंग पूल है, या कोई एक डेप्थ पोर्शन है, उसके बेस पर जस्ट अ मिनट. Yes, Himanshi, can you able to hear me? Can everyone hear me? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Himanshi Yes, is sir. not able to hear me. Anyone else? Anyone else is having that problem? No, sir. No? Okay, okay, okay. So now let's see. So as I was telling this thing that this is a swimming pool or a river or something like that. So suppose, for example, any object which is at the bed of that place, means if it is a river, then on the river bed, if it is the swimming pool, then the floor of the swimming pool is having an object. Now you are standing outside of that swimming pool or that river, and you are looking through the water. You are looking through the water inside that pool or that place. You will find that the object will be very much closer from the surface of the water. The object is going to be very much closer than to the surface of the water. But actually, if you will go inside to bring it out, you will find that it is very much deep over there. It is very much deep over there. So why this happens, or how this happens? This happens due to the refraction of light from a denser medium to a rarer medium. This happens. We had already understood that this is happening due to the refraction. But one more major thing which you have to understand, this happens due to the refraction of light from a denser medium to a rarer medium. याद रखना, जब denser medium से rarer medium की तरफ refraction होती है, तो इस तरह का सिचुएशन हम लोगों को देखने को मिलता है from the rarer medium to denser medium. अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? समझ में आ रहा है ना हम क्या बता रहे हैं? कि अगर हम लोग रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम देखते हैं तो ऐसा होता है. लेकिन सवाल है कि ये होता क्यों है? तो ये होता इसलिए है क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रही है जो कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आ रही है. तो हम दो बातें बता रहे हैं, हम दो चीजें बता रहे हैं. रिफ्रैक्शन हो रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और उसके कारण ये चीज हम लोगों को देखने को मिल रही है. एंड टू द अदर साइड वी यूज्ड टू फाइंड दैट द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम वी आर लुकिंग टू द ऑब्जेक्ट. हम लोग वहां पर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं. So this is the thing which we have to understand. Now to calculate the formula, to calculate this one, we have a formula. हम लोगों के पास एक यहाँ पे फॉर्मूला है. वो है क्या? यहाँ पर आते हैं रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ. तो रियल डेप्थ क्या होता है? रियल डेप्थ which you can measure in actual condition. With an actual scale you can measure the actual depth for the water body which is present over there. And the apparent depth, what is the apparent depth? Apparent depth is the appearing depth which we used to see from the rarer medium inside the denser medium. So there is a shift. There is a shift. What is that shift? Shift is equals to real depth minus apparent depth. Shift is equals to real depth minus apparent depth.
Okay, and with that one we get a formula which we say as shift equals to real depth whole into 1 minus refractive index of that medium. Okay, we are going to prove this. We are going to prove this one. We are going to understand how this is going to happen. If you will solve this one, it will come as real depth minus real depth by the refractive index of that medium for which we are talking about. तो इसी से कई सारे तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कई सारे तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला को प्रूफ करो। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, तुम लोगों को वैल्यू न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए कुछ दिया हुआ रह सकता है। तुम लोगों को अपीयरिंग डेप्थ और शिफ्ट दिया हुआ है, तुमको पूछा गया है रियल डेप्थ क्या है, तो फॉर्मूला के ऊपर तुम लोगों को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो पूछी जा सकती है, द शिफ्ट बाय विच वी यूज टू सी दैट व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स ऑन। ये ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर वो डिपेंड करती है। तो पहला चीज जो आएगा वो आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये किस मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं, दिस डेंसर मीडियम। इस डेंसर मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेंसिटी सॉरी इस मीडियम की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतनी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उतना ही शिफ्ट जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा उस हिसाब से। नेक्स्ट, द थिकनेस ऑफ द डेंसर मीडियम। तो जो जो डेंसर मीडियम की जो थिकनेस है, जो यानी जो उसकी उसकी खुद की डेंसिटी है, वो कितनी होगी, क्योंकि उसके बेसिस पर उसकी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिटरमाइन हो जाएगी। एंड द कलर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे की यहाँ पर कलर या फिर उसके वेवलेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। एंड द इंसिडेंट रे ओवर हियर, याद रखना, इस सिचुएशन में जो इंसिडेंट रे है, इट इज गोइंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम। ये डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, जिसको कि हम इस फिगर से तुम लोगों को दिखाए हैं कि यहाँ पर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है। तो अगर किसी को मछली पकड़ना है, अगर किसी को मछली पकड़ना है, जो फिशरमैन्स होते हैं, जो लोग हंटिंग करते हैं, या फिर जो ट्राइबल लोग होते हैं, वो लोग सीधे सीधे हंटिंग करने के लिए नदियों में चले जाते हैं। सो दे नेवर पुट देयर बो, they never put their arrows towards the same direction where they see the say their they appear to see the fish। यानी वो लोग जहां पर फिश को देखते हैं वहां पर वो लोग एरो नहीं मारते हैं, उसके अलग से एरो मारते हैं। अगर तुम लोगों को याद हो तो हम तुम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोले हुए थे पिछले क्लास में, क्लास 8 में तुम लोगों को जब रिफ्रैक्शन बता रहे थे, तब हम बोले थे कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट तुम लोग कर सकते हो अपने घर में भी। तो अगर नहीं किए हो तो तुम लोग अभी भी करके देख सकते हो, और किए हो तो तुम लोगों को पता ही होगी। हम क्या बोले थे, एक बकेट ले लो, एक बड़ी सी बकेट ले लो, और उसमें पूरा पानी भर दो, उसको जितना हो सके उसमें पानी भर दो, साफ पानी भर दो। नाउ यू टेक अ स्मॉल कप, एक छोटा सा कप लो और उसको बीच में रख दो। बीच में उसको एकदम छोटा सा कप लेना है, बहुत बड़ा कप नहीं लेना है, छोटा सा कप लेना है, उसको बीच में रख दो। Now you take a 1 rupee coin or 2 rupee coin, ठीक है। Now you try to drop it from the top in such a way that the coin should go in that cup। तो ऐसा अगर तुम लोगों ने किया है, ये एक्सपेरिमेंट हम तुम लोगों को क्लास 8 में बोले थे, तो जिन लोगों ने किया है वो इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग इस चीज को समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। पहली सिचुएशन, पहला कंडीशन। एक और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, एक और दूसरा एग्जाम्पल जो कि डे टू डे लाइफ से हम लोगों को देखने को मिलती है, अपीयरेंट डेप्थ और ड्यू टू द रिफ्रैक्शन के कंडीशन में, तब हम आते हैं इसके कैलकुलेशन में। बहुत सारे जगह पे तुम लोगों ने देखा होगा कि ऑफिस में, ऑफिस के टेबल पर, जो ऑफिस का टेबल होता है, ऑफिस के टेबल पर एक ग्लास होती है, एक व्हाइट ग्लास होती है, ठीक है। एक व्हाइट ग्लास सी लगी हुई होती है, जैसे कि फिजिक्स लैब में भी जो टेबल है उस पर एक व्हाइट ग्लास लगी हुई है, और नीचे में बहुत सारे पेपर्स हैं, बहुत सारे पेपर्स हैं। तो उन पेपर्स को जब अरेंज किया गया तो वो सब के सब स्ट्रेट अरेंज किए गए, और जब ग्लास उसके ऊपर रखा गया, जब उसके ऊपर ग्लास रखा गया, रखने के बाद जब उसको देखा जाता है, then all the papers are appearing to be little bit tilted, all the papers are appearing to be little bit tilted। Why it is so, can anyone tell? जितने भी पेपर्स होंगे वो एकदम सीधे नहीं होंगे, वो थोड़ा सा टिल्टेड दिखेगा हम लोगों को। Why it is so, can anyone tell me? Yes,
नो वन नोज द आंसर, किसी को नहीं पता है ऐसे। Because of refraction. बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, चलो अच्छी बात है, क्योंकि चैप्टर रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो रिफ्रैक्शन ही होना ही है। तो सही है, रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। तो वो ग्लास जितना मोटा होगा, एक और मजेदार बात, वो ग्लास जितना मोटा होगा वो पेपर उतना ही सीधा होगा। तो तुमको लग रहा है कि ये टेढ़ा है, तुम उसको फिर सीधा करने की कोशिश करोगे, फिर तुम पेपर से देखोगे तुमको फिर वो टेढ़ा लगेगा। तो ये फेनोमिना जो है, ये फेनोमिना हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन। अब हम लोग देखते हैं इस कैलकुलेशन को, कैसे इस कैलकुलेशन को करना है और इसमें किन चीजों का हम लोगों को ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो फिगर बनाया है सेम उसी तरह से तुम लोग भी बना सकते हो, और उस फिगर से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे इसमें क्या चीजें हैं जिसको कि हम लोगों को समझने की जरूरत है। सो लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले लाइट जो है, सपोज फॉर एग्जाम्पल सन है, यहाँ पर सन की लाइट जो है वो इस कंटेनर के अंदर चली गई है, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट है, बॉटम में एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट में लाइट गिरने के बाद रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व हियर दैट द सम ऑफ द लाइट रेज आर रिफ्लेक्टिंग स्ट्रेट। कुछ लाइट रेज जो है एकदम परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्ट कर गई, लेकिन सारी लाइट रेज तो परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्ट तो नहीं करेगी। कुछ लाइट रेज जो होंगी वो इधर से बेंड कर गई, कुछ लाइट रेज जो है वो इधर से बेंड करके इधर की तरफ आ गई। तो जब ये यहाँ पर आ गई हैं, तो ये तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन करेगी, क्योंकि ये आ रही है एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम। तो इसकी पाथ होनी चाहिए था ये, इसकी पाथ होनी चाहिए थी ये होनी चाहिए थी इसकी पाथ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये रिफ्रैक्शन कर रही है, रिफ्रैक्शन कर रही है, तो कहां से कहां पे कर रही है, ये रिफ्रैक्शन कर रही है फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कंडीशन, the light ray is coming from the denser medium to rarer medium. So what would happen over here, we will observe that the light ray is going to run away from the normal. यहाँ पे लाइट रे जो है वो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर हम लोग इस कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे कि लाइट रे जो है वो दूर भाग गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये लाइट रे दूर भाग गई है, इसको तुम लोग प्रोड्यूस कर दो पीछे की तरफ, जैसे हम किए हुए हैं वैसे ही यहाँ पे तुम इसको प्रोड्यूस कर दो, इसको प्रोड्यूस कर दो पीछे की तरफ, ठीक है। क्योंकि जिस पॉइंट पर वो लाइन आएगी, यहाँ पर तुम्हारी आंख है, ठीक है। Here you are seeing, so your eyes are here, so your eyes are here, and when you are looking for that object, you will see that the object is at here, the object is at here। तुमको ये ऑब्जेक्ट यहां पर दिखेगी। तो ये कैसे दिख रही है, या फिर इसका क्या सिचुएशन है, या फिर इसका कैलकुलेशन क्या है, इसको हम लोग थोड़े से समझने की कोशिश करते हैं। नाउ ओवर हियर, ऑल ऑफ यू प्लीज बी माइंडफुल एंड सी द फिगर प्रॉपर्ली। नाउ इन दिस वन, would I say this thing that A dash, here I will name it this O, this one is O, A dash O is parallel to N dash, is it? दिख रही है सबको, फिगर में दिख रही है कि ये जो लाइन है, ये ए ओ सॉरी ए डैश ओ जो है वो एन डैश एन के साथ पैरेलल है। अगर ये इस तरह से पैरेलल बन जाती है, देन ओवर हियर could I say this thing that BO is the transversal, it is the transversal, hence angle I is going to equals to angle I. Now what is this? I will name the angle over here as angle AOB is equals to angle N dash BO. Means this angle, this particular angle is going to be equals to this particular angle. So over here, if this angle is I, then this is also I. So we are getting for this thing. Okay. Now, on the other hand, if I go for this one, so over here, this is the angle of refraction. This is the angle of refraction. This is the angle of refraction. Now, in this one, would I say like this thing that as angle, and why this happened, this is alternate interior angle. If you all see alternate interior angle, now in the same way, if you go for the angle NBC, NBC means this angle,
this angle is equals to this angle over here, that is AIB. So if this is the angle of refraction, then that is also angle of refraction. So this is R and this is R. Now, as the light ray is going from the denser medium to rarer medium, so we need to calculate the refractive index of air over here. We have to go for the refractive index of air. So refractive index. So if I have to calculate the refractive index, just a minute. So if I have to calculate the refractive index of air with respect to water, so what can I write for here? I can write sine I by sine R. So what is sine I? How could I represent this sine I? How could I represent this sine I for this particular sine I? So for this one, as I had already described this one, हम जैसे कि पहले ही बता चुके हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल से बनती है, ये सीधे सीधे राइट एंगल ट्रायंगल से बनती है. देखो यहाँ पर ये बी ए ओ जो ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो साइन आई के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं एंगल? इट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. It is equals to perpendicular by hypotenuse. So what would be the perpendicular? That would be AB. AB by the hypotenuse is over here as OB. By. Now this refraction, the angle of refraction. So sine R. So sine R is equals to what? That would be again AB by BI. BI. So for this one, if I will go for, then I can write it as AB by OB into BI by AB. So you can easily cancel these two quantities. You can easily cancel these quantities. So what you are going to get? You are going to get BI by OB. ठीक है, हमको लगता है यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा. यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक में जो वैल्यू लिए हैं, इसमें कहीं पे किसी को कोई डाउट है तो बताओ. Is there anything? No? Okay, so everyone is sleeping. No one is solving. Okay, so over here, तो यहाँ पर हम लोग आगे वाटर जो लाइट रे है वो अंदर से बाहर की तरफ जा रही है. लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग देख कहां से रहे हैं? हम लोग तो देख बाहर से रहे हैं. तो उस सिचुएशन में अगर हमको बोलना पड़े कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रेस्पेक्ट टू एयर अगर हमको जाना है, then what it would be? It would be the reciprocal of this one. It will be the reciprocal of this one, what we had obtained over here. So it will become as 1 by BI by OB. So it will become as reciprocal. So it will be OB by BI. तो यहाँ पर ये OB by BI हो गया. ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम इसके वैल्यू में थोड़ा सा चेंजेस करने वाले हैं. ठीक है, क्या चेंजेस करने वाले हैं और क्यों चेंजेस करने वाले हैं वो देखो. ये जो अगर हम लोग देखते हैं OB, ये OB क्या है? जस्ट लेट मी क्लियर आउट दिस वन. 1 मिनट, लोगों को और अच्छे से हिसाब से दिखेगी. ओके, ना लेट्स सी. अब यहाँ पे ये क्लियर हो गई है. अब देखो यहाँ पे OB, ये OB क्या है? OB है वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां से वो इमेज बन रही है, मतलब जहां से वो लाइट रे जा रही है. ठीक है, और BI क्या है? जहां पर वो इमेज दिख रही है. देखो, अगर हम लोग इस सिचुएशन में देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक चेंज ला सकते हैं. और वो चेंज क्या ला सकते हैं? इंस्टेड ऑफ OB हम लोग ये बोल सकते हैं ये है AO, और इंस्टेड ऑफ BI हम लोग ये बोल सकते हैं AI. अब ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं कि हम OB को AO बता रहे हैं और BI को हम AI बता रहे हैं? तो ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है और ये पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर से कि रिफ्रैक्शन हो रही है, इसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है. So it is almost equal. See, OB is almost equal to AO. In the same way, BI is almost equals to AI. So when we come for this thing,
then we are satisfying our formula. So AO क्या है? AO है real depth. It is the real depth. और AI क्या है? It is the apparent depth. It is the apparent depth. So what you are actually getting over here? What you are actually getting over here? The formula which you are going to derive from this particular part or from this particular condition is, just a minute, let me clear it out. Okay, so the formula which you are getting over here, that is the refractive index of water with respect to air is equals to real depth by the apparent depth. By the apparent depth. So this is the thing. Now, if you have to go for the shift, shift is equals to what? That is real depth minus apparent depth. ठीक है, तो वो real depth minus apparent depth हो जाती है. बस अब तुमको यहाँ पर इसका वैल्यू पुट अप कर देना है. अगर तुम लोग देखो, अगर तुम लोग यहाँ पे देखो तो इसको बस सिंप्लीफाई कर देना है. हम लोग की टाइम खत्म हो रही है, लेकिन तुम लोग इतना छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हो. तो यहाँ पर अगर हम लोग रियल डेप्थ इज इक्वल्स टू लिखते हैं, देन वी कैन राइट इट एज the apparent depth into the refractive index of water with respect to air. Then the shift is equals to real depth minus apparent depth. So real depth का वैल्यू हम लोग लिख देंगे यहाँ पर. तो real depth का वैल्यू हम लोगों के पास क्या आ जाएगा? apparent depth into refractive index of water with air minus apparent depth. अब बस तुम लोगों को यहाँ पर इसको कॉमन निकाल लेना है. तो apparent depth को अगर तुम लोग कॉमन निकाल लेते हो, so it will be as the refractive index of water minus 1. एंड अगर तुम लोग इसको किसी दूसरे तरीके से भी सिंप्लीफाई करते हो, तब भी तुम लोगों के पास ये आ जाएगी. तो तुम लोगों के ऊपर बस डिपेंड करता है कि किस तरह से किसको यूज करना है. तो तुम लोग मैथमेटिकली इसको इजीली डिराइव कर सकते हो और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. So I hope you all had understood this condition. Is it? Yes, yes. So once again, can you explain the last part from where we have